Good morning, students. Welcome to Business Studies class. Today we are going to learn about a new topic of scientific management. This is techniques of scientific management. Topics for the day are all the topic that we are going to discuss are the various techniques given by F.W. Taylor. So these are functional foremanship, standardization and simplification of work, method study, motion study, time study, fatigue study, and differential piece weight system. There are these four techniques: method, motion, time, fatigue, are also known by the name work study. So if in the paper it is asked, write work study or explain work study technique, it means they are asking for these four techniques. First of all, we are going to start with the very first technique. This is functional foremanship. So before going for the explanation, there is one diagram. This diagram shows what is functional foremanship. So I'm going to explain this technique first of all with the help of diagram, and then we'll explain its components. F.W. Taylor, as you know that he is a proponent of industrial efficiency. According to him, the role of foreman is very important in any organization. Who is foreman? Foreman is the highest ranking worker, and he's the lowest manager in the level of management. In the previous chapter, we learned about level of management. In that, we have studied about three level of management: top level management, middle level management, and operational level management. Foreman is a manager, is a rank of a manager at an operational level. He is the one who directly interact with workers. So according to F.W. Taylor, if you really want to improve industrial production, so we have to give recognition to the role of foreman, the man who's responsible for taking the work from the worker. So he proposed that the planning work should be different from production work. So according to the F.W. Taylor, no one man can perform all function altogether. So we can be a jack of all trade but master of one. हम सारे काम कर सकते हैं, लेकिन मास्टर स्पेशलाइजेशन तो हमारी किसी खास में होती है. तो इसके मुताबिक F.W. टेलर ने कहा कि अगर आपको वर्कर से बहुत एफिशिएंट वाला काम लेना है, कि कम रिसोर्सेज में उससे बेस्ट काम लेना है, तो हमें एक टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी जिसका नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप. उन्होंने कहा सबसे पहले जो फैक्ट्री मैनेजर हैं, जो सबसे नीचे लेवल मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, उन्हें दो स्पेशलिस्ट अपॉइंट कीजिए. एक जो कि प्लानिंग के इंचार्ज होंगे, दूसरे वो प्रोडक्शन के इंचार्ज होंगे. अंडर प्लानिंग के इंचार्ज हमारे प्लानिंग इंचार्ज के अंडर फोरमैन काम करेंगे. ये जो नाम दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन, ये सब फोरमैन के काम हैं. लेकिन एक ही फोरमैन इन सभी कामों को नहीं कर सकता. तो फोरमैन, एक इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क फोरमैन हम अपॉइंट करेंगे, एक रूट क्लर्क से फोरमैन को अपॉइंट करेंगे, एक टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क को करेंगे, एक डिसिप्लिनरी को करेंगे. इसी तरह से प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी फोरमैन काम करेंगे, दोज हु आर स्पेशलिस्ट इन देयर वर्क: स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर. In total, we are going to appoint 8 specialists in the factory system, and these 8 people will guide the workman. Because जब workman को काम करने के लिए कोई instruction चाहिए, तो he will go to instruction card clerk because he is the specialist who frame instructions. इसी तरह से काम
कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, इस रूट को चेक करने के लिए देयर इज अनदर फोरमैन दैट इज कॉल्ड रूट क्लर्क. तो इन सभी फोरमैन के अपने अपने रोल है. What is this? Let's check out on the next slide. So first of all, we'll go for the meaning of functional foremanship. Functional foremanship is a technique which aims to improve the quality of supervision at shop floor. Shop floor, the factory level जहाँ काम हो रहा है, by putting a worker under 8 specialist foremen. तो हम ये वो टेक्निक है जिसका एम क्या है, क्वालिटी ऑफ सुपरविजन को बढ़ाना. बिकॉज फोरमैन क्या करता है, ही इज अ मैनेजर, ही फोरसी द वर्क. वो खुद उसका काम इंस्ट्रक्शन देना है जो वर्कर काम कर रहे हैं. फिर उसके सुपरविजन को बढ़ाने के लिए वर्कर को एक स्पेशलिस्ट के अंदर रखा गया. इन दिस टेक्निक प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूशन. और जैसा कि हमने देखा फंक्शनल फोरमैनशिप में दो पार्ट डिवीजन किए गए, प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज. प्लान करने वाले जो लोग हैं वो अलग होंगे और उसे एग्जीक्यूट करने वाले अलग होंगे. द फोरमैन इज द लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर. जैसे कि हमने पहले भी कहा, टेलर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ फोरमैन वर्क. So he suggested two specialists to be appointed, planning in charge and production in charge. अंडर प्लानिंग इंचार्ज हमने रेड इंक से उनकी पोस्ट लिखी है जो कि डायग्राम में भी आपने देखी थी. इनका काम क्या है, इसके ऊपर बेटा एमसीक्यूज आ जाते हैं. सो एमसीक्यूज आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है व्हाट इज द जॉब ऑफ रूट क्लर्क. सो दिस क्लैरिफिकेशन शुड बी देयर. तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जितने भी इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, रूट क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, डिसिप्लिनरियन है, ये सब फोरमैन है. क्या काम करते हैं? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम है टू ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्क. रूट क्लर्क टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन. रूट मतलब जैसे कोई काम करना होता है तो उसका एक स्टेप्स होते हैं, है ना. हमने कहा था मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, इनपुट कौन पहले लगेगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, इस रूट को स्पेसिफाई करना रूट क्लर्क का काम है. टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट बाय द टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. इनका काम है टू चेक कितने टाइम में और कितनी लागत में काम होना चाहिए, ये कितने स्टैंडर्ड टाइम और कॉस्ट में काम होना चाहिए, ये टाइम एंड कॉस्ट शीट बनाने वाले फोरमैन का काम है. नेक्स्ट वन इज डिसिप्लिनरियन. वेरी इजी, वेरी अंडरस्टैंडेबल टू इंश्योर डिसिप्लिन. In the same way, the production in charge are going to appoint 4 person under them. Number 1, speed boss. What speed boss to be checked? To be responsible for timely and accurate completion of job. तो समवेयर स्पीड बॉस का काम है इस चीज को चेक करना कि टाइमली और सही काम होना. समवेयर दे आर वर्किंग ऑन द इफेक्टिवनेस. गैंग बॉस इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप मशीन्स एंड टूल रेडी फॉर द ऑपरेशन बाय द वर्कर्स. वर्कर्स को मशीन्स और टूल्स रेडी करके देने का काम गैंग बॉस का है. रिपेयर बॉस टू इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन फॉर द मशीन्स एंड टूल्स. वर्किंग कंडीशन, गैंग बॉस तो चेक कर रहा है कि मशीनरी और टूल सही है, लेकिन रिपेयर बॉस को इंश्योर करना है कि वर्किंग कंडीशन ठीक है और जो मशीन्स एंड टूल्स हैं वेदर दे आर रिक्वायरिंग सम रिपेयर्स और नॉट, तो दैट विल बी इंश्योर्ड बाय रिपेयर बॉस. Next one is the inspector. He is responsible to check the quality of work. So each worker will have to take order from these 8 foremen in related process or function. इससे क्या होगा, हर specialist advice उसे मिलेगी that will help to improve his efficiency. The next very important technique given by F.W. Taylor is standardization and simplification of work. ये टेक्निक बेटा एक साथ है लेकिन इसके दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं. एक तो स्टैंडर्डाइजेशन की बात हो रही है, दूसरी सिंप्लीफिकेशन की बात हो रही है. हम पहले स्टैंडर्डाइजेशन को समझेंगे. स्टैंडर्डाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी. स्टैंडर्डाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे हम हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड सेटअप करते हैं. क्यों स्टैंडर्ड चाहिए? हमें स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस को करने की जरूरत है. रॉ मटेरियल को, टाइम को, प्रोडक्ट को, मशीनरी को, मेथड्स को, वर्किंग कंडीशंस को. जब तक हमारे पास स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं, बिकॉज स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क और वी कैन से यार्ड स्टिक जिससे हमने किसी चीज को कंपेयर करना है.
फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं सीबीएसई में बिजनेस स्टडी में 100 में से 100 आते हैं. इसका मतलब standard marks in business studies 100. Anyone can score 100 marks, but they have to see कि उसके लिए कैसे काम करना है. तो अगर किसी भी काम में स्टैंडर्ड्स नहीं सेट किए गए हैं तो you don't know in which direction you have to put your efforts. So standardization refers to setting standard for every business activity. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? Why standardization is required in the business? Number one, to reduce given line or product to 6 type sizes and characteristics. सबसे पहले कोई भी काम जब हम कर रहे होते हैं हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है. तो वो जो इतनी सारी अननेसेसरी हमें पॉसिबिलिटीज नजर आती है उसमें हम एक जगह फिक्स करते हैं, दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड टू अचीव. नंबर टू, एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट. तो इससे क्या होगा, हम एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को चेंज कर सकते हैं. जैसे मोबाइल फोन की जो बैटरीज हैं हम उन्हें एक दूसरे सेट में यूज कर सकते हैं, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन है. पर एक ही कंपनी के मोबाइल फोन एक दूसरे की बैटरी यूज कर सकते हैं, एक कंपनी की बैटरी हम दूसरे में नहीं लगा सकते. दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस इन क्वालिटी एंड मटेरियल. हम चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी हो और हमारा काम जो है एक्सीलेंट हो. फॉर दैट वी नीड स्टैंडर्ड्स एंड establish standard of performance of men and machine. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब सिर्फ मशीन्स और टूल्स और प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड सेट नहीं करना है, मेन के लिए भी जो ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड सेट करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है. इसी के अंदर जो सेकंड टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. Simplifications aimed at eliminating superfluous varieties, sizes and dimension. बहुत सीधी सी बात है, सिंप्लीफिकेशन हैज टेकन फ्रॉम सिंप्लिसिटी. तो इसका एम क्या है? इसका नेम है कि जो अननेसेसरी डाइवर्सिटीज हैं साइजेस में, प्रोडक्ट्स में, डायमेंशंस में, उनको हटाना. जबकि स्टैंडर्डाइजेशन इंप्लाइज डिवाइजिंग न्यू वेराइटीज इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग वन. एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी शूज बनाती है, वो 4 नंबर से लेके 10 नंबर तक के सारे शूज बनाती है. एक सर्वे किया जाता है कि कंपनी का सबसे ज्यादा और सबसे कम बिकने वाला साइज कौन सा है. जब उस सर्वे के रिजल्ट आए तो पता चला कि जो 5 नंबर का साइज है वो हार्डली कुछ ही लोग मांग रहे हैं, वेरी एक्सेप्शनली डिमांडेड बाय द पीपल, which means that कि कंपनी unnecessarily अपने इस साइज को बनाने के लिए अपने इनपुट को लगा रही है. तो अगर हम 5 साइज की चीज ना भी बनाएं तब भी हमारे बिजनेस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको बनाने में जो हमारे रिसोर्सेज लग रहे हैं, टाइम लग रहा है, मटेरियल लग रहा है, वो तो वेस्ट हो रहा है ना, क्योंकि वो बनकर स्टॉक हो रखा है, उसकी डिमांड नहीं है. तो सिंप्लीफिकेशन का एम्स है कि जो अननेसेसरी डाइवर्सिटीज आपने प्रोडक्ट में बना रखी हैं उन्हें एलिमिनेट करना. इससे होगा क्या? इट रिजल्ट इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन्स एंड टूल्स. तो हमारी सेविंग हो जाएगी कॉस्ट की. और वो कॉस्ट की सेविंग क्यों होगी? क्योंकि हम लेबर कम लगाएंगे उस जगह पे, हमारी मशीन्स को काम नहीं करना पड़ेगा और हमारे टूल्स भी हमें इस चीज के लिए नहीं चाहिए. It implies reduced inventory, fuller utilization of equipment and increasing turnover. और इससे हमें ये फायदे भी मिलेंगे. So now I'm going to discuss about all the 4 work study technique. In the beginning I told you that there are 4 work study techniques. So question may comes, explain work study technique. Number 1, method study we are going to talk about. किसी भी काम को करने के लिए कभी भी एक मेथड नहीं होता है. There are various methods to perform a given task, but FW Taylor said there is only one best method to do a task. Method may be many, पर किसी भी काम को बेस्ट करने के लिए हमेशा एक ही बेस्ट मेथड होता है. The objective of method study is to find out one best way of doing the job. और इस स्टडी को कंडक्ट करने के पीछे जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है, यही है कि हम इस वन बेस्ट मेथड को ढूंढें. इससे क्या होगा? द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर. तो
अगर हम वन बेस्ट मेथड किसी काम को करने का निकाल दें तो उससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि हम बिना वेस्टेज किए हुए प्रोडक्शन करेंगे और क्वालिटी हमारी अच्छी हो जाएगी एंड कस्टमर्स विल बी सेटिस्फाइड. The next work study technique we are going to discuss is a motion study. As you know that while doing any work, we are engaged and our body is performing so many motion. किसी भी काम को करते समय, फॉर एग्जाम्पल आप नोट्स बना रहे हैं, आप लिखने बैठे हैं, तो होता क्या है, आपके पास नोटबुक है, पेन है, पेंसिल है, यू नीड टू अरेंज स्केल ऑल्सो समटाइम, राइट? So many things, so many motions are involved: sitting, standing, walking, picking, right? So similarly, when at the factory level worker is performing the job, he is also performing so many movements like lifting, putting object, sitting and changing position, which are incidental while doing a typical job. Now what happens? Unnecessary movements are sought to be eliminated so that efficiency can be maintained. अब उनमें से कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं, those are productive. कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं which are incidental, वो होने ही होने हैं, और कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं which are unproductive. So टेलर ने क्या कहा, उन्होंने स्टॉप वॉचेस और कुछ सिंपल यूज किए कलर्स के टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मोशन, which motion is productive, which is incidental and which is unproductive. इससे क्या होगा, we are going to identify all those unproductive motion which are not required, because उन मोशन के कारण से जो वर्कर है उसकी एनर्जी जो होती है एग्जॉस्ट हो जाती है, वो टायर्ड फील करता है और वो अपना काम समय रहते हुए बेस्ट नहीं कर पाता है. The objective of motion study is to eliminate unnecessary and wasteful movement so that it takes less time to complete job efficiently. It helps to increase productivity. और अगर हम ऐसा करें तो इससे प्रोडक्टिविटी भी हमारी इम्प्रूव होगी. The next work study technique is time study. It is a technique to determine the standard time taken to perform a well-defined job. इस टेक्निक को लगाने के पीछे जो मेन मकसद है, स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना कि किसी भी काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है. टाइम मेजरिंग डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ टास्क. और इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें टाइम मेजरिंग डिवाइसेस चाहिए, जैसे स्टॉप वॉच चाहिए, जिससे हम इसे करेंगे. तो कितना टाइम किस काम को लगता है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. नंबर 1, वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द टास्क. नंबर 2, साइकिल टाइम ऑफ द ऑपरेशन. नंबर 3, टाइम मेजरमेंट कॉस्ट. ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर किसी भी जॉब का टाइम सेट करना या स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा इस पे बेस्ड है. The objective of time study is to determine the number of workers to be employed, frame suitable incentive schemes and determine labor cost. अगर हमें ये पता है कि किसी काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, इसका फायदा क्या होगा, हमें ये पता चल पाएगा कि इस काम को कंप्लीट करने के लिए कितने वर्कर चाहिए, क्योंकि एक पर्सन को इतना टाइम लगता है, तो कितने लोग मिलकर इस काम को पूरा करेंगे वो हमें यहाँ से पता चलता है. फिर इंसेंटिव प्लान्स हमने कैसे फ्रेम करने हैं एंड लेबर कॉस्ट कैसे डिसाइड करनी है. The next technique is called fatigue study. What is fatigue? Fatigue means tiredness. तो अक्सर आप लोगों में भी यह आ जाती है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते हाथ थक जाता है. Sometimes you don't feel like studying. तो इस स्टडी का फैक्ट्री में क्या काम है, क्योंकि टेलर मानते हैं कि कोई भी पर्सन कंटिन्यू काम नहीं कर सकता है, तो दे नीड सम रेस्ट पॉज, राइट. और ये नेचुरली है कि जब इंसान काम कर रहा होता है तो एक टाइम के बाद वो फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से टायर्ड हो जाता है, तो उसको रेस्ट इंटरवल देने की ज़रूरत है. कितना रेस्ट इंटरवल देना है और कितने समय के बाद देना है, this is the purpose of this study. Fatigue study seeks to determine amount and frequency of rest intervals in completing the time. Amount मतलब कितने समय का और frequency मतलब कितनी देर बाद, है ना, how many time.
तो जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि फैक्ट्री सिस्टम में देयर आर 2 स्मॉल टी ब्रेक्स एंड 1 लंच ब्रेक. तो स्मॉल टी ब्रेक इट मे रेंज फ्रॉम 10 to 15 minutes and lunch break from 30 minutes, 20 to 30 minutes. ये जो रेस्ट पॉज और इंटरवल दिए गए हैं, दिस इज टू रीगेन देयर स्ट्रेंथ. क्योंकि जब हम उन्हें गैप देते हैं तो उससे क्या होता है, दे आर एबल टू रीगेन देयर एनर्जी एंड स्ट्रेंथ एंड देन विद द सेम पेस दे विल स्टार्ट वर्किंग. तो दिस इज द नेक्स्ट वर्क स्टडी. नेक्स्ट टेक्निक ऑफ टेलर इज डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम. सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो टेक्निक है ये सेल्फ मोटिवेटेड टेक्निक है. व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेटेड? इसके लिए सुपरविजन की जरूरत नहीं है. हमने एक ऐसा वेज सिस्टम, वेज आप सबको पता है, जो वर्कर काम करते हैं उनको जो कंपनसेशन दिया जाता है डेली वेज पे, तो उनको हम वेज कहते हैं. अब वेज सिस्टम बेटा हमारे पास दो तरह का होता है. एक होता है टाइम वेज सिस्टम, दूसरा होता है पीस वेज सिस्टम. टाइम वेज सिस्टम में हम पेमेंट तब करते हैं अगर हम कहते हैं वर्कर इज गोइंग टू वर्क फॉर अस फॉर 8 hours फॉर एग्जाम्पल. तो अगर वो 8 घंटे हमारे लिए काम कर रहा है तो ही इज एंटाइटल्ड फॉर द वेज. दिस इज कॉल्ड टाइम वेज सिस्टम. और दूसरा होता है पीस वेज सिस्टम. पीस वेज सिस्टम में हमें टाइम से कोई मतलब नहीं है. हमने अपने वर्कर को एक टारगेट दे दिया कि भाई आज आपने 10 यूनिट्स बनाने हैं. आप 10 यूनिट आज बनाओ, 2 दिन में बनाओ, 3 दिन में दो. पेमेंट तब मिलेगी जब आप 10 यूनिट्स बना देंगे. तो आप जितने यूनिट बनाएंगे उतने के हिसाब से आपका पेमेंट होगा. सो दैट काइंड ऑफ वेज सिस्टम इज कॉल्ड पीस वेज सिस्टम. तो टेलर जो है वो इससे भी आगे चले गए. उन्होंने कहा पीस वेज सिस्टम तो होना चाहिए लेकिन डिफरेंशियल होना चाहिए. अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टेलर की सोच क्या थी. टेलर वांटेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर. टेलर को ये लगता है कि हर जो वर्कर है वो एफिशिएंट नहीं होता. तो एक एफिशिएंट वर्कर की पेमेंट एक इनएफिशिएंट वर्कर की पेमेंट से अलग होनी चाहिए. ऐसा क्यों होना चाहिए? इन ऑर्डर टू रिवॉर्ड द एफिशिएंट वर्कर. सो वी इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम ऑफ पेमेंट. तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं. तो पीस वेज सिस्टम है लेकिन डिफरेंशियल है. वो कैसे? एक ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड टारगेट पर डे का रख दिया 10 यूनिट और क्या कहा, जो लोग 10 यूनिट या उससे ज्यादा बनाएंगे, है ना, उनको ₹50 के हिसाब से पेमेंट होगा. Those who will produce less than 10 unit will be paid at the rate of 40. तो इसका मतलब अगर हमने 10 यूनिट बना लिए तो हमारी 50, तो नीचे हमने 2 वर्कर ले लिए. एक वर्कर है ए और दूसरा बी. दोनों का प्रोडक्शन ले लिया पर डे का. ए ने स्टैंडर्ड जो 10 था उससे 2 यूनिट ज्यादा बनाई है और बी जो थे उन्होंने जो स्टैंडर्ड 10 यूनिट था उससे 1 यूनिट कम बनाई. फर्क क्या हुआ, जो 12 यूनिट की पेमेंट है वो एट द रेट ऑफ 50 हो रही है, दैट इज ₹600. एंड बी हु इज प्रोड्यूसिंग 9, उनकी पेमेंट 40 के हिसाब से हो रही है. इसका मतलब उनकी पर डे की पेमेंट कितनी है? 360. ऑल्दो द डिफरेंस इज ओनली ऑफ 3 यूनिट इन प्रोडक्शन, बट द पेमेंट का जो डिफरेंस है 240 रुपीज का है. Now this difference of ₹240 is big enough for the inefficient worker to be motivated to perform better. क्योंकि कोई भी वर्कर ये नहीं चाहेगा कि एक साथी तो अच्छी अमाउंट लेके घर जा रहा है और वो कम लेके जा रहा है. तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर टेक्निक इंट्रोड्यूस्ड बाय द टेलर. I hope these techniques are clear to you. Thank you.